Hello dear students, in last lecture we have completed up to question number 30. Now we are going to start question number 14. Read the question carefully. Prove by vector method that the angle subtended on a semicircle is a right angle. The property of diameter. Diameter always subtends angle of 90 degree at any point on the circle, or angle inscribed in a semicircle is always a right angle. ये प्रॉपर्टी हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है सर्कल चैप्टर में, लेकिन तब हमने प्रूव भी किया था इसको. अब हमें इसे वेक्टर मेथड से प्रूव करना है. अब वेक्टर मेथड से जब प्रूव करेंगे तो एक सेमी सर्कल कंसीडर किया मैंने, AB विथ AB एज डायमीटर एंड O एज अ सेंटर, और इस सेमी सर्कल पर A और B छोड़ के कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर किया है. P is any point of the semicircle and then I have joined this AP and BP. ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे. Consider a semicircle. Consider a semicircle with center O and diameter AB. Let P be any point on the semicircle. Okay. Now consider the position vectors. Let A vector, B vector, P vector be position vectors of points A, B, P respectively. अब देखिए, as it is a circle or semicircle, this OP, OA and OB are the radii. Means we can say that OA is equal to OB is equal to OP because these are radii of same circle. और अगर ये सेम सर्कल है, उसके रेडियस है, तो we can say that magnitude of OA vector is nothing but equal to magnitude of OB vector is nothing but equal to magnitude of OP vector. Means we can say that magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector is equal to magnitude of P vector. इसे कहेंगे हम फर्स्ट. Also देखिए ये OA and OB they are opposite in direction. Also we can say that OA vector is nothing but equal to minus OB vector because they are having same magnitude but opposite direction. यानी OA और OB ये opposite direction में है, यानी they are negative vectors of each other. Means A vector is nothing but minus B vector. Call it as second. अब हमारा टारगेट है कि एंगल APB 90 डिग्री दिखाना है, यानी AP और BP एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखाने हैं, तो AP वेक्टर और BP वेक्टर हम फाइंड करेंगे. नाउ AP वेक्टर डॉट BP वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिखाना पड़ेगा. तो AP वेक्टर को लिख सकते हैं हम P वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट BP वेक्टर कैन बी रिटन एज P वेक्टर माइनस B वेक्टर. अब हमें पता है माइनस B वेक्टर यानी A वेक्टर है, तो मैं इसको A वेक्टर ऐसे लिखता हूं, यानी ये आएगा P वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट P वेक्टर प्लस A वेक्टर. सिंस वी कैन से दैट फ्रॉम सेकेंड, क्योंकि माइनस B को हमने A वेक्टर लिखा है. अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. P वेक्टर डॉट P वेक्टर प्लस P वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट A वेक्टर. ये आएगा, ये P डॉट A और P डॉट A प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर होल स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट 0. इसे लिखेंगे सिंस फ्रॉम फर्स्ट.
क्योंकि फर्स्ट में दिखाया है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये इनका जो डिफरेंस है वो जीरो आएगा, यानी एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आया। तो हम लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीपी वेक्टर, therefore we can say that angle APB is equal to 90 degree. Hence we can say that the angle subtended on a semicircle by the diameter of circle is always 90 degree. समझ में आया? और angle inscribed in a semicircle is always 90 degree. समझ में आया ये? तो इसको प्रूफ आप लिख लो। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Now look at this. Look at question number 15. If a vector has direction angles 45 degree and 60 degree, find the third direction angle. यानी अल्फा, बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी लाइन, और एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए हैं, तो हम कोई भी दो की वैल्यू कंसीडर करेंगे, जैसे अल्फा एंड बीटा, और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर अ गिवन वेक्टर suppose a vector, let its direction angles be alpha, beta and gamma. Given that alpha is equal to 45 and beta is equal to 60 degree, we are going to find gamma is equal to how much? तो we know that जैसे अल्फा, बीटा और गामा में हमें एक रिलेशन पता होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is always equal to 1. Therefore cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1. cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1. Therefore 1/2 plus 1/4 plus cos स्क्वायर गामा is equal to 1. तो 1/2 plus 1/4 आएगा 3/4, तो cos स्क्वायर गामा is equal to आएगा 1 minus 3/4, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1/4, तो cos गामा की वैल्यू आएगी, therefore cos गामा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2, यानी गामा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो therefore we can say that third direction angle of that vector is 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, तो ये गामा की वैल्यू आ गई। अब 60 डिग्री क्यों? प्लस 1/2 किया तो 60 डिग्री और माइनस 1/2 लिया तो 120 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, ये ध्यान में रखिए कभी भी। ठीक है, अब ये 60 नंबर का क्वेश्चन सेम है जिसमें गामा और बीटा और गामा की वैल्यू दिए हमें, गामा 45 यानी सेम दिए हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अ लाइन मेक्स angles of measure 45 degree and 60 degree with positive direction of y and z axis, then angle made by the line with the positive direction of x axis, यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, यानी जैसे बीटा और गामा दिया है अल्फा निकालना है, सेम प्रोसीजर यूज करो और फाइंड करो, यू कैन डू इट। ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 degree with x, y, z axis respectively, find its direction cosines। यानी given that अल्फा, बीटा, गामा के वैल्यू दिए हैं, given that alpha is equal to 90 degree, beta is equal to 135 degree and gamma is equal to 45 degree. Therefore we can say that L is equal to cos alpha, M is equal to cos gamma and n is equal to cos beta and n is equal to cos gamma. Substitute the values, that is nothing but cos of 90 degree और cos 90 की वैल्यू होती है 1,
इट इज नथिंग बट cos ऑफ 135 डिग्री. cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2. सॉरी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है. याद रखना है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है. और n इज इक्वल टू आएगा cos 45 डिग्री. cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2. तो therefore we can say that direction cosines of line are 0, -1/√2 and 1/√2. ठीक है, these are nothing but the डायरेक्शन कोसाइंस. समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. Now look at for question number 18. If a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y, z axis respectively, find its direction cosines. इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया था, सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू दी है. तो आप इजीली इसके डायरेक्शन कोसाइंस, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 60 की 1/2 और cos ऑफ 30 की वैल्यू √3/2. तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0, 1/2, √3/2. ठीक है. अब देखिए, फाइंड क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के वेक्टर के, तो पहले हम इस वेक्टर को लिखेंगे. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो हमें उस वेक्टर के अलोंग होने वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है. देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर. तो ये आएगा √4 प्लस 1 यानी √9. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 3. Therefore, unit vector in the direction of a vector is a vector upon magnitude of a vector, that is nothing but 1/3 into 2i cap plus 2j cap minus k cap. Therefore, a vector, unit vector in the direction of a vector is 2/3i cap plus 2/3j cap minus 1/3 k cap. And these are nothing but the values of cos alpha, cos, therefore L is equal to 2/3, M is equal to 2/3 and N is equal to -1/3 are the direction cosines, of given line or given vector. समझ में आ रहा है आपको? तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने हैं तो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो हमें वो यूनिट वेक्टर मिलेगा. और यूनिट वेक्टर में जो i, j, k के कोएफिशिएंट्स हैं दैट आर सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर. समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 6, -7, -1 and 2, -3, 1. फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सो दैट एंगल अल्फा इज एक्यूट. यानी यहां पे हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा इज एक्यूट मींस कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आना जरूरी है. cos अल्फा पॉजिटिव है मतलब L की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और L की वैल्यू पॉजिटिव है यानी डायरेक्शन रेशियोज में A की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. यानी सिर्फ हमें यहां पे ये जज करना है कि कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं. जैसे कि फॉर्मूला हमें पता है कि if A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are 2 points, then direction ratios of that line are given by x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो हम पॉइंट्स कंसीडर करते समय इसको A नाम देंगे और इसको B नाम देंगे. तो हम कंसीडर करेंगे let A has coordinates 2, -3, 1 and B has coordinates 6, -7, -1.
therefore direction ratios of line AB are A is equal to 6 minus 2, B is equal to minus 7 plus 3, and C is equal to minus 1 minus 1. That is, A is equal to आएगा 4, B is equal to आएगा minus 4, C is equal to आएगा minus 2. Means we can say that direction ratios of line AB are 4 comma minus 4 comma minus 2, that is 2 comma minus 2 comma minus 1. ये हो गए. अब डायरेक्शन रेशियोज है उसको 2 से डिवाइड करके लिखा तो भी चलता है, बिकॉज एनी लाइन हैज नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बट ओनली यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना है तो हम फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी 3. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर, डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे और आएंगे 2/3 माइनस 2/3 एंड माइनस 1/3. ठीक है. आप जब बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे वो फॉर्मूला लिखिए, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी. समझ में आया यहां तक? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. Now look at for question number 21. If a line has direction ratios 4 minus 12, 18, then find its direction cosines. It is also very easy. Given that direction ratios of line are 4 minus 12, 18. That is, we can say that 2 minus 6, 9. These are nothing but the direction cosines of the line. 2 minus 6 and 9. 2 से divide करके लिया इसको. Therefore, we can say that A is equal to 2, B is equal to minus 6 and C is equal to 9. Therefore, under root of a square plus b square plus c square is equal to under root of 2 का स्क्वायर आएगा 4, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, that is under root of 121, that is 11. Therefore, direction cosines of line are given by a upon under root of a square plus b square plus c square, comma b upon under root of a square plus b square plus c square, c upon under root of a square plus b square plus c square. आप इसको प्लस और माइनस भी यूज कर सकते हो, प्लस और माइनस a अपॉन प्लस और माइनस b अपॉन प्लस और माइनस c अपॉन, या सिंपली ऐसा यूज करो. दैट इज वी कैन से दैट 2 upon 11, comma minus 6 upon 11, comma 9 upon 11. This is nothing but your answer. ठीक है. 2 by 11 minus 6 by 11 and 9 by 11. Now, 22nd question. Find the position vector of points such that AB is inclined to the x-axis at 45 degree and y-axis at 60 degree. ठीक है. उस लाइन AB के अलोंग ये एक पोजीशन वेक्टर है. वेक्टर इज लाइन अलोंग AB, यानी AB के अगर आपको x एक्सिस और y एक्सिस के साथ के एंगल दिए हैं तो हम AB के डायरेक्शन एंगल्स पूरे निकाल सकते हैं. हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दिए हैं, मींस हम गामा भी फाइंड कर सकते हैं. एक बार हमें अल्फा बीटा गामा मिले तो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिलाएंगे
जिसे हम LMN कहते हैं, और हमें डायरेक्शन कोसाइन से उस डायरेक्शन में होने वाला एक यूनिट वेक्टर मिलता है, और हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 यूनिट्स है। तो उस हिसाब से उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोसीजर देखिए कैसे करेंगे। लाइन इज इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, गिवन दैट हम कंसीडर करेंगे, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, cos 45, that is nothing but 1 by root 2, and cos beta is equal to आएगा cos 60 डिग्री, cos of 60 डिग्री यानी ये आएगा 1 by 2. Now we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Therefore cos square alpha यानी 1 by 2, cos square beta यानी उसका स्क्वायर 1 by 4 plus cos square gamma is equal to 1. Therefore 3 by 4 plus cos square gamma is equal to 1. Therefore cos square gamma is equal to 1 minus 3 by 4. Cos square gamma is equal to 1 by 4, and therefore cos gamma is equal to plus or minus 1 by 2. Okay? Therefore we can say that unit vector along OP is nothing but equal to, unit vector along OP is cos alpha into I cap plus cos alpha beta into j cap plus cos gamma into k cap. That is nothing but equal to, cos alpha की वैल्यू हमने निकाली है, that is 1 by root 2 I cap plus 1 by 2 j cap plus or minus 1 by 2 k cap. ये यूनिट वेक्टर हो गया. Therefore we can say that p vector is equal to, therefore p vector is equal to OP vector, that is nothing but 6 into this unit vector यानी 6 into this OP cap. cap यानी ये यूनिट वेक्टर होगा जिसे हम OP cap कहेंगे यहाँ पे, या स्मॉल p cap बोले तो भी चलता है, इसको स्मॉल p cap बोलेंगे. यूनिट वेक्टर अलोंग दैट means here we can say that this is nothing but 6 p cap, that is nothing but 6, sorry 12 यूनिट दिया है, 12 OP is equal to 12 दिया है, तो 12 into p cap, तो 12 into bracket this 1 by root 2 I cap plus 1 by 2 j cap plus or minus 1 by 2 k cap. So therefore p vector is equal to आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 6 root 2 I cap plus 6 j cap plus or minus 6 k cap. This is nothing but final vector. समझ में आया आपको? तो इसको नोट कर लीजिए. This is the answer of question number 22. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. Now look at for question number 23. The direction ratios of AB vector are minus 2, 2, 1. If A has coordinates 4, 1, 5 and length AB is equal to 6 units, then find B. यानी एक लाइन है AB, इस लाइन पर एक पॉइंट दिया है A with coordinates 4, 1, 5 और इससे 6 यूनिट डिस्टेंस पे का B पॉइंट है, either this one be B point or this one. तो ये डिस्टेंस जो दिया है 6, तो आपके आंसर 2 आने वाले हैं, ये याद रखो, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला यूज करना है. x इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस LR, y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस MR, z इज इक्वल टू z1 प्लस और माइनस NR. यानी अब हम कंसीडर करेंगे लेट B हैज कोऑर्डिनेट्स x, y, z. गिवन दैट A has coordinates 4, 1, 5 that are considered to be x1, y1, z1. Now direction ratios
of AB are -2, 2, 1, यानी these are nothing but the values of ABC. ये ABC के वैल्यूज हो गए. तो हम फाइंड करेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस फर्स्ट. Therefore, under root of a square plus b square plus c square is equal to आएगा under root of 4 plus 1 यानी 3. Therefore, direction cosines of line AB are -2/3, 2/3, 1/3. That is, we can say that L is equal to -2/3, M is equal to 2/3 and N is equal to 1/3. Length of AB दिया है आपको. Length of AB is equal to 6 units. Therefore, we can say that the value of R is 6. अब हमें B के कोऑर्डिनेट्स के लिए now use the formula x is equal to x1 plus or minus LR, y is equal to y1 plus or minus mr and z is equal to z1 plus or minus nr. अब थोड़ा केयरफुली रहना है. यहां पर गड़बड़ क्या होती है देखिए. x1 की वैल्यू यहां पे लिखेंगे. x1 की वैल्यू है 4, x1 यानी 4 प्लस और माइनस L की वैल्यू क्या है देखिए. L इज -2/3, तो मैं यहां पे -2/3 लिखता हूं इंटू R इज 6. Y इज इक्वल टू क्या आएगा. y1 की वैल्यू है 1 प्लस और माइनस M की वैल्यू है 2/3 इंटू 6 और Z इज इक्वल टू आएगा. Z1 की वैल्यू है 5 प्लस और माइनस ये 1/3 इंटू 6. देखिए तो ये आएगा 4 प्लस और -4. Y इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस और -4 और Z इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस और -2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, जब प्लस लेंगे तो ये 4 - 4 0 आएगा और 8 आएगा. ये ध्यान में रखिए, ये माइनस साइन की वजह से 8 और 0 ऐसा नहीं लिखना है, 0 और 8. ठीक है. y इज इक्वल टू क्या आएगा. प्लस लिया तो 5 और माइनस लिया तो -3. कभी भी पहला नंबर आप प्लस का लिखिए, दूसरा माइनस का लिखिए. और z इज इक्वल टू आएगा 7 और 3. Therefore, B has coordinates 0, 5, 7, 0, 5, 7 और 8, -3, 3. This is the answer. B के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ऐसे हो गए. यहां गलती से भी गलती नहीं करना. अगर ये माइनस की वजह से आप यहां 8 और 0 या यहां प्लस और माइनस कोई भी नंबर पहले और बाद में लिखोगे तो आप ये कोऑर्डिनेट्स की मिक्सिंग कर सकते हो और आपका आंसर गलत हो सकता है. तो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करते समय थोड़ा केयरफुली रहना है. ये वाले एग्जाम्पल में ये आपको ध्यान में रखना ही है. बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं. नहीं तो आप सीधा सीधा एक बार प्लस के तीनों फॉर्मूले यूज करके सेपरेटली फाइंड आउट करो और में माइनस के तीनों फॉर्मूले लेके सेपरेटली सॉल्व करो. ठीक है, ऐसा भी किया तो चलता है. समझ में आया. इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. Now look at for question number 24. One of the important type of question. Find angle between the lines whose direction cosines LMN satisfies the equations 5L plus M plus 3N is equal to 0 and 5MN minus 2NL plus 6LN is equal to 0. 6LM is equal to 0. Now look at this. दो रिलेशंस दिए हैं. इसमें से एक रिलेशन है जिसे हम लिनियर रिलेशन बोलते हैं. डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन. दो लाइंस है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इन दो रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. यानी एल एम एन के जो आने वाले वैल्यूज है इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसके भी. यानी हमें दो पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एल एम एन फाइंड करने हैं विच आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है. तो
ये कैसा इसको सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज होंगे। तो हम उसको फाइंड करते हैं। उसकी प्रोसीजर याद रखिए, इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो लीनियर रिलेशन है इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर टू वेरिएबल्स में हमें पहले फाइंड आउट करना है। जैसे हम गिवन इक्वेशंस लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर 5l plus m plus 3n is equal to 0। therefore हम लिखेंगे m is equal to minus 5l minus 3n। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। एंड 5mn minus 2nl plus 6lm is equal to 0। इसे हम इक्वेशन सेकेंड कहेंगे। अब ये फर्स्ट में जो m की वैल्यू निकाली है इसको इसमें डालना है। therefore you can say that 5m m की वैल्यू डालना है 5n into bracket minus 5l minus 3n minus 2nl plus 6l into bracket minus 5l minus 3n is equal to 0। ये समझ में आ गया? देखिए इसे हम फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट जो m की वैल्यू हमने निकाली है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया। क्यों? तो हमें l और n को प्रोपोर्शनल नंबर फाइंड करने हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको। देयरफॉर हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 5n इंटू ये आएगा -25ln -15n स्क्वायर -2nl और ln -30l स्क्वायर और -18ln is equal to 0। therefore we can say that 15 minus 15n square, ये -2 -18 यानी -20 और ये -45 ln -30l square is equal to 0। अब इसको -15 से भी डिवाइड करो और -15 से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? therefore n square plus 3ln plus 2l square is equal to 0। इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे। अब इसको हम 2l स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं, इसको 2ln plus l यानी ये आएगा therefore n square plus 2ln plus ln plus 2l square is equal to 0। तो यहां पे मिलेगा n इंटू ब्रैकेट n plus 2l plus l into bracket n plus 2l is equal to 0। therefore n plus 2l into second bracket n plus l is equal to 0। तो आपको मिलेगा n is equal to -2l और n is equal to -l। इसको हम थर्ड कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो n और l के दो रिलेशन मिले हमें। Means we can say that in first relation L and L are proportional to 1 and -2. Here they are proportional to -1 and 1. तो अब हमें तीनों LMN के रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे हम पहला रिलेशन लेते हैं नाउ केस फर्स्ट इफ, यानी एक रिलेशन पहले लाइन से सेटिस्फाई होने वाला है, दूसरा रिलेशन दूसरे लाइन से सेटिस्फाई होने वाला है। क्योंकि हमें बताया है कि these relations are satisfied by two lines। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी दो लाइंस हैं उनमें का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। तो केस फर्स्ट में लेंगे इफ n इज इक्वल टू -2l, तो ये n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? therefore m इज इक्वल टू मिलेगा -5l -3 इंटू -2l। इसे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट।
तो हमें मिलेगा देयरफॉर m इज इक्वल टू -5l प्लस 6l। तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू l। देखो अब यहां पे l का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2m इज इक्वल टू -2l। इसको मैं a लिखता हूं आपको समझने के लिए, और इसको b लिखता हूं। a और b को देखिए, फ्रॉम a एंड b, from A and B, what can we judge? This -2L is equal to -2M is equal to N। अब इसको -2 से डिवाइड कीजिए तो हमें मिलेगा L अपॉन 1 is equal to M upon 1 is equal to N upon -2। Therefore, you can say that direction ratios of first line, आपको एक सेंटेंस याद है, आर 1, 1, -2। The numbers proportional to direction cosines are said to be direction ratios of the line। यानी ये वैल्यूज हो गई आपकी, a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -2। पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमें। अब जो रिलेशन हमने यहां पे सेटिस्फाई किया है, अब दूसरा केस लेके, केस सेकंड में क्या दिया है, इफ n इज इक्वल टू -l, देन क्या होता है, देखिए इसको मैं c लिखता हूं, ऐसा c। इफ n इज इक्वल टू -l, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है, देखिए इसमें वैल्यू रखनी है फर्स्ट में, -5l -3 इंटू -l। इसको लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, therefore we have m is equal to -5l plus 3l, यानी m is equal to आया -2l। ठीक है, लेकिन यहां पे l का कोएफिशिएंट -l है, ये -2l है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, therefore 2n, बट ऐसे लिखेंगे आप, बट 2n is equal to -2l। इसको लिखेंगे फ्रॉम c। अब ये दोनों को देखिए, therefore -2l is equal to m is equal to 2n। -2 से इसको भी डिवाइड कीजिए, तो l अपॉन 1 is equal to m अपॉन -2 is equal to n upon 1 -1। Therefore, you can say that direction ratios of another line are 1 -2 -1। यानी ये हो गई a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -1। हमें निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज मिल गए। नाउ एंगल बिटवीन लाइंस, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर into under root of a2 square plus b2 square plus c2 square। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला, जब डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, अब a1 a2 1 into 1 that is 1, 1 into -2 it is -2, and -2 into -1 that is +2 divided by under root of 1 plus 1 plus 4, 1 plus 1 plus 4 into under root of 1 plus 4 plus 1, 1 plus 4 plus 1 इनके स्क्वायर्स। तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/6। ये हो गई cos थीटा की वैल्यू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आएगा cos इनवर्स ऑफ 1/6, cos इनवर्स ऑफ 1/6। In this way we can find angle between the lines।
इनको स्टेप्स में याद रखो। पहले इसमें जब भी आपको ऐसे रिलेशंस दिए हैं तो पहले जो लिनियर रिलेशन है, लिनियर रिलेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे दो वेरिएबल के फॉर्म में निकालनी है। उस रिलेशन को हमें क्वाड्रेटिक रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। उसको सॉल्व करके पहले वो दो वेरिएबल के एक दूसरे के साथ रिलेशन फाइंड करने हैं। एक एक रिलेशन लेके लिनियर रिलेशन यूज करके फिर तीनों वेरिएबल के एक दूसरे के साथ लिनियर रिलेशन फॉर्म करना है, जिसमें हमें नंबर्स प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट मिल जाएंगे और पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। सिमिलरली फॉर यूज फॉर सेकेंड लाइन, एंड वंस वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइंस वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस इजीली। ठीक है, तो आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। Now look at for question number 25, which is the last question from this lecture. Prove that by vector method the altitudes of triangle are concurrent. इसके पहले हमने मीडियंस आर कॉन्करेंट ये भी प्रूव किया है और एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट वो भी प्रूव किया है। अब ये थर्ड है जिसमें हम प्रूव कर रहे हैं कि अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, लेकिन इसमें मेथड थोड़ी अलग हमें प्रूव करना है। तीन लाइन कॉन्करेंट है, मींस दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अब यहां पे थोड़ा अलग क्या करना है, अब जब ट्रायंगल एबीसी है तो उसके दो अल्टीट्यूड हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें पता है। जैसे मैंने अल्टीट्यूड बीई और सीएफ निकाले तो दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो पक्का है, क्योंकि इफ बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, देन वी कैन से दैट ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो थर्ड है, जैसे मैंने ए पी डी निकाला है, ठीक है, मैं इसको एडी को लेता हूं, एडी इज परपेंडिकुलर, इसको मैं डायरेक्टली निकालता हूं ऐसे, एडी इज परपेंडिकुलर, आप कोई भी लिया तो चलता है। जैसे मैंने एडी और बीई ये दो अल्टीट्यूड्स निकाले तो दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। फिर मैंने सी को पी से ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड किया, ये एफ में इंटरसेक्ट करता है। अब मुझे पता है कि एडी और बीई परपेंडिकुलर है, मैंने अगर ये दिखाया कि सीएफ भी परपेंडिकुलर है एबी को, तो हम कह सकते हैं कि सीएफ इज द थर्ड अल्टीट्यूड एंड इट इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट पी, हेंस वी कैन से दैट दे आर कॉन्करेंट। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, एडी परपेंडिकुलर है बीसी को हमें पता है, ये हमने कंसिडर किया। बीई परपेंडिकुलर एसी, ये भी हमने कंसिडर किया। AD and BE intersect each other at point P. अब CP ज्वाइन किया और CP को आगे एक्सटेंड किया F तक। अब AD और BE तो अल्टीट्यूड है ही। अगर हमने प्रूव किया कि CF is also third altitude which is passing through point P, then we can say that these three altitudes are concurrent. ठीक है, तो देखिए कैसे करने का है। Consider triangle ABC. Consider triangle ABC. Let AD is perpendicular to BC and BE is perpendicular to CF. Sorry, BE is perpendicular to AC. Therefore, we can say that let altitudes AD and BE intersect each other at point P. Let AD and BE intersect each other at point P. Join CP and extend it up to F such that A dash F dash B। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे हमने फिगर निकाली है वो फिगर के बारे में ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। लेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर, F वेक्टर एंड P वेक्टर be position vectors of points
A, B, C, D, E, F and P respectively. ठीक है, अब देखिए एक एक लेंगे हम, जैसे AD इज परपेंडिकुलर टू BC पता है हमें, वी नो दैट AD is perpendicular to BC, therefore we can say that, देखिए ये AP वेक्टर मैंने लिया और ये BC वेक्टर लिया, तो मैं लिखता हूं कि AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर, बराबर है। अगर AD BC को परपेंडिकुलर है तो AP वेक्टर must be perpendicular to BC vector, therefore we can say that AP vector dot BC vector is equal to 0. So because two vectors are perpendicular, their dot product is 0, therefore we can say that this P vector minus A vector dot C vector minus B vector is equal to 0. Therefore इसको डॉट करो, P vector dot C vector minus P vector dot B vector minus C vector dot A vector plus A vector dot B vector is equal to 0. Call it as first. इसको first. Similarly वैसे ही BE is perpendicular to AC. It means we can say that BP vector यानी ये वेक्टर BP vector is perpendicular to AC vector, वेक्टर फॉर्म में लिया उसको, therefore we can say that BP vector dot AC vector is equal to 0. Therefore we can say that P vector minus B vector dot C vector minus A vector is equal to 0. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, that is P vector dot C vector, समझ में आ रहा है, माइनस P vector dot A vector माइनस B vector dot C vector और प्लस A vector dot B vector is equal to 0. इसको लिखेंगे हम सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड की सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा, देखिए ये आएगा, सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आएगा P वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस P वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर और माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब ये P डॉट C के साथ A डॉट B के साथ कैंसिल होगा। अब ये वाला और ये वाला साथ में लेते हैं, देयरफॉर P वेक्टर डॉट ये होगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस इन दोनों के साथ में लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे B माइनस A आएगा तो इसको हम माइनस लिखेंगे, माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि देखिए ये जो दो टर्म्स है इसमें से P डॉट कॉमन निकाला, ये दो टर्म्स है इसमें से माइनस C डॉट कॉमन निकाला, तो यहां पे आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट P वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BA वेक्टर डॉट CP वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे देयरफॉर CP वेक्टर is perpendicular to BA vector, means we can say that CP vector is containing line CF, therefore CF is perpendicular to AB, therefore we can say that CF is third altitude passing through point P
passing through point P. Therefore, we can say that all three altitudes of any triangle are always concurrent. समझ में आया? तो इसे नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आज हमने ये एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे पूरी कंप्लीट की है। आगे हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ जाने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू।